Hello everyone, my name is Jinwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve exercise 14.2 from NCERT probability with you. In the last session we have discussed what basically probability means and all the terms and terminologies related to it. We also did exercise 14.1 where I told you about the basic terms and what is sample space, what is mutually exclusive exhaustive events, simple and compound events, and all that those things. So now we will move ahead to exercise 14.2, and from here on we will be solving the questions. So let's solve the first question first. So first question: which of the following cannot be valid assignments of the probability for outcome of the sample space this much? Okay, so it is saying इसमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट नहीं है प्रोबेबिलिटी का कि अपने को मान लो ये 7 मेरे सैंपल स्पेस है सैंपल स्पेस में मुझे ओमेगा वन लाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो दे हैव गिवन अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ omega 1 that is 0.1 probability of omega 2 probability of omega 3 probability of omega 4 and so on. They have given us 5 cases and they are saying which one is not possible. So it is simple. If you will sum all of them and if you will get the one, then it is possible because sum of probabilities of all the cases is always one. We know that, like, if we take an example of a coin, then we will be getting only 2 cases. We will either be getting head or we will either be getting tail. So probability would be half and half, whose sum would be one. So total sum of probabilities will always be one. So these are the probabilities of getting the respective numbers. Like, this is the probability of getting omega one. This is for omega two. This is for omega three, and so on. So if you will sum them and if you are getting one, then it is possible. Otherwise, it is not. Like taking first one, point 0.1 plus point 0.01 plus point 0.05 plus point 0.03. So plus point 0.01. These four will make point 0.1. Point 0.1 plus point 0.1 is point 0.2. Point 0.2 plus point 0.2, point 0.4, and point 0.4 plus point 0.6 is 1. So A is possible. Similarly, you can do all the 5 parts. You have to just add them all and see that if you are getting one, then it is possible. Otherwise, it is not. So first one is easy. Just add all the cases. Just add all the probabilities and see if you are getting one. If it is, then it is possible. Otherwise, it is not. Okay. Then let's move to question number 2. A coin is tossed twice, and what is the probability that at least one tail occurs? Okay. कॉइन इज टॉस ट्वाइस तो मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो अपनी सैंपल स्पेस क्या होगी सैंपल स्पेस वुड बी पहली बार हेड दूसरी बार भी हेड या फिर पहली बार हेड दूसरी बार टेल या फिर टेल हेड भी हो सकता है या फिर टेल टेल हो सकता है तो अपने से क्या बोला आपने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल अकर्स सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी इज जो अपने को चाहिए अपॉन टोटल आउटकम्स अपने को चाहिए एटलीस्ट वन टेल मतलब दो होंगी तो भी चलेंगी तो इसमें एटलीस्ट वन टेल आ रही है इसमें आ रही है इसमें भी आ रही है मतलब दो आ रही है सो टोटल फेवरेबल केसेस 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 सो आवर आंसर वुड बी 3/4 तो इसको कैसे करते हैं इसको लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स ठीक है तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 में क्या बोला है 3 में मुझे बोला है अ डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ओके अब प्राइम नंबर विल अपीयर सो जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो अपने पास 6 केस होते हैं 1 2 3 4 5 6 वैसे तो मुझे लिखना ही चाहिए लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा सैंपल स्पेस कंटेन 1 2 3 4 5 ये 6 केसेस आएंगे फिर अब जैसे क्या बोले एक एक करके सॉल्व करते हैं फर्स्ट में बोला अपने को प्राइम नंबर विल अपीयर प्राइम नंबर कौन सा है प्राइम नंबर 1 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट सॉरी 2 इज प्राइम 3 इज प्राइम एंड 5 इज प्राइम सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी
तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स कितने 3 अपॉन टोटल कितने 6, सो प्रोबेबिलिटी वुड बी हाफ. ठीक है. देन इन सेकेंड पार्ट a number greater than or equal to 3 will appear. So 3, 4, 5, 6 ये चार केस अपने फेवरेबल है. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6. सिंपल. इसको अपन लोग लिख सकते हैं 2/3. ठीक है. देन इन थर्ड पार्ट a number less than or equal to 1 will appear. लेस देन और इक्वल टू 1 सिर्फ 1 ही आएगा क्योंकि 1 से फिर तो हो नहीं सकता. तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1/6. ठीक है. तो इस केस में एक ही आंसर आ रहा है. फिर फोर्थ में और नंबर मोर देन 6 विल अपीयर नॉट पॉसिबल. तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही क्योंकि 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता. ठीक है. देन फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में बोला है a number less than 6 will appear. 1 2 3 4 5 सिंपल. 1 या 2 या 3 या 4 या 5. सो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल कितने 5, रूल कितने 6. सो दिस विल बी अवर प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे. क्या बोला क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, a card is selected from a pack of 52 cards. Okay, how many points are there in the sample space? ऑब्वियसली बात है, सैंपल्स में 52 पॉइंट्स होंगे. 52 पॉइंट्स होंगे. ये अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं. अपने को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है a card is selected from a pack of 52 cards. So how many points will be there in sample space? 52. वैसे भी अपने पास कार्ड में 52 टाइप के डिफरेंट कार्ड्स होते हैं. अपने को पता ही होता है. ये तो नहीं पता तो भी बता दूं. अपने को कार्ड्स में 52 टाइप के कार्ड्स होते हैं 52 टाइप के, जिसमें से 13 टाइप के मतलब 13 13 13 करके चार पोर्शंस में बटे होते हैं. 13 होते हैं स्पेड्स के, 13 होते हैं क्लब्स के, 13 होते हैं हार्ट्स के और 13 होते हैं डायमंड के. ऐसे करके 13 के पेयर में चार पेयर बने होते हैं इसके. और फिर 13 फोर 52 ऐसे करके अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है. तो ये तो फर्स्ट था. सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है एक सेकंड. हाँ, तो हमने सेकंड में बोला है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स. तो मैंने बताया ना 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स के, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, 13 कार्ड्स होते हैं क्या बोलते हैं अपने हार्ट्स के, और 13 कार्ड्स होते हैं अपने क्लब के. तो ऐसे करके अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं. अब मुझसे बोला है एस ऑफ स्पेड्स. तो एस जो होते हैं वो चार होते हैं और चारों के एक एक होते हैं. मतलब स्पेड्स का एक एस होता है, एक होता है क्लब का, एक होता है डायमंड का, एक होता है हार्ट्स का. इन्होंने बोला एस ऑफ स्पेड्स. एस ऑफ स्पेड्स वुड बी ओनली वन. 52 में से एक ही कार्ड ऐसा होगा जो एस ऑफ स्पेड होगा. एस मतलब ए जिसको अपन लोग बोलते हैं उसको अपन लोग एस बोलते हैं. सो स्पेड्स का एस सिर्फ एक ही होता है. मतलब सबके एस सिर्फ एक ही होंगे. एक होता है एस ऑफ स्पेड, एक होता है एस ऑफ क्लब, एक होता है एस ऑफ डायमंड एंड एक होता है एस ऑफ हार्ट्स. सो एस ऑफ स्पेड्स would only be one out of 52. तो 1/52 इज द आंसर. थर्ड क्या है, थर्ड में बोला है प्रूव दैट द कार्ड इज एन एस एंड सेकंड इज द ब्लैक कार्ड. अब एस कितने होते हैं, चार होते हैं. क्यों, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा और एक क्लब का होगा. टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स चार अपॉन टोटल पत्ते कितने हैं 52. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. थर्ड का सी मतलब सी का फर्स्ट पार्ट ये है, सी का फर्स्ट पार्ट. और सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है ब्लैक कार्ड. ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं. क्यों, क्योंकि जो अपना स्पेड और क्लब होता है वो होते हैं ब्लैक कार्ड्स और डायमंड और हार्ट होते हैं अपने रेड कार्ड्स. तो 13 एंड 13 26 26 कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड्स एंड रेस्ट आर रेड कार्ड्स. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26/52 that is equal to half. Okay, so this is our answer. Let me tell you about the cards. So कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कार्ड्स चार चार टाइप के होते हैं. मतलब टोटल 52 होते हैं. टोटल 52 होते हैं. अब वो जो 52 है वो बटे हुए होते हैं एक
दो, तीन और चार, चार पेड़ में बटे होते हैं। ठीक है। कैसे? देखो कौन कौन से होते हैं, ये करता हूँ। एक होता है अपना स्पेड का, स्पेड्स। एक होता है अपना क्लब। एक होता है हार्ट्स। और एक होता है डायमंड। ठीक है। इस टाइप के अपने कार्ड्स होते हैं। जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं ब्लैक। और ये दोनों होते हैं रेड। ये होते हैं रेड। ठीक है। ये 13 होते हैं। ये भी 13 होते हैं। ये भी 13 होते हैं। और ये भी। ठीक है। ऐसे करके भी है 52 कार्ड्स टोटल। अब इसमें एक 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 किंग चारों में होता है, एक एक क्वीन चारों में होती है, एक एक जे चारों में होगा, एक एक एस चारों में होंगी। ऐसे करके अपने पास तीन तो फेस कार्ड्स होते हैं। तीन फेस कार्ड स्पेस में, तीन फेस कार्ड क्लब में, तीन फेस कार्ड हार्ट्स में, तीन फेस कार्ड्स डायमंड में। कौन से फेस कार्ड्स? के, क्यू एंड जे। किंग, क्वीन एंड जोकर, जिसको अपन लोग जे बोलते हैं। एंड एक होता है एस, मतलब ए। एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक हार्ट में होता है, एक डायमंड होता है। बाकी सारे 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं सब। ठीक है। तो ये अपने कार्ड्स के सैंपल्स की जैसे बनती है। अगर किसी ने खेले नहीं हो तो मैंने बता दिया। फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है? 5 में मुझे बोला है फेयर कॉइन विथ वन मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। ओके, मतलब इसमें हेड और टेल नहीं है, इसमें 1 and 6 है। एंड फेयर डाई आर बोथ टॉइस, बोथ टॉस्ड। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। ओके, सो कॉइन से तो अपने पास 1 and 6 आ सकते हैं। कॉइन से क्या क्या आ सकता है? कॉइन से आ सकता है 1 and 6। ठीक है। और डाइस से क्या आ सकता है? फिर डाइस से अपने पास आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। मैंने उनसे बोला कि इनको जब हमने दोनों को साथ में थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। तो ए में क्या है? सम इज इक्वल टू 3। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कॉइन पे बना है और इस पे 2 आए, तभी पॉसिबल है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल कि सम 3 हो जाए। तो दिस द ओनली वन केस। टोटल केस कितने होंगे? तो उनकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इज 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केसेस कितने होंगे? 1, 1 के साथ सारे, 6, 6 के साथ सारे, मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 6। सो ऐसे करके अपने पास 12 टोटल केस आएंगे, जिसमें से जो अपने को चाहिए सम इक्वल टू 3, उसका एक ही केस है। सो our probability would be 1/12. And in B part, it is saying sum equal to 12। इसके लिए कौन कौन से सैंपल केसेस होंगे, कौन कौन से फेवरेबल केस होंगे? ओनली वन, अगेन 6,6। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे अपने को 6, जैसे कि अपने को 12 का सम मिले। जब 6,6 आएगा तभी अपने को 12 का सम मिलेगा। अपने को दोनों से लेना पड़ेगा एक एक, क्योंकि अपन दोनों को टॉस कर रहे हैं। तब एक कॉइन के ऊपर आ रहा है, एक नंबर डाई के ऊपर आ रहा है। उनका अपने को सम लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों नंबर का सम डाई से ही ले लिया। तो इस केस में भी एक ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस विल बी अगेन 1/12। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। There are 4 men and 6 women on the city council. एक मिनट। There are 4 men and 6 women on the city council. Okay. If one council member is selected for a committee at random, how likely is that it is a woman? Okay. Obvious सी बात है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो मैं लिख सकता हूँ। वुमेन कितनी है? वुमेन है टोटल 6, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 6 + 4 10। तो 6/10 का आंसर हो जाएगा। 6/10 मतलब 3/5। ठीक है। मतलब आपने मुझे चाहिए कि कमिटी में जो वुमेन हो वो
काउंसिल मेंबर से हो, काउंसिल मेंबर भी वुमेन हो, तो वुमेन कितनी है? 6, तो 6 अपॉन टोटल कितने लोग हैं? 10। 6 बटे अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 3/5। वैसे अपन इस क्वेश्चन लिखेंगे, अपन इस क्वेश्चन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 3/5। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times and a person with rupees 1 for each head and lose rupees 1.5 for each tail that turns up. Okay, 4 times एक कॉइन को टॉस किया गया है और बोला है कि अगर वन आता, अगर हेड आता है तो पर्सन विंस रुपीज 1, एंड टेल आता है तो 1.5 लूज करेगा. Then from the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. Okay, तो पहले तो मुझे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपन ने एक कॉइन को 4 बार टच कर रहे हैं. तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकती है? चारों हेड, या फिर हेड 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 टेल, या फिर हेड हेड टेल टेल, या फिर हेड टेल टेल टेल, या फिर टेल 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 टेल. ठीक है. उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है, अभी अपन लोग ने क्या किया है, हम या फिर पैसे नहीं करते, स्पष्ट करते हैं कि 4 हेड ले लिए, अपने को 3 हेड लेने हैं. तो तीन तीन हेड कैसे ले सकते हैं? हेड 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 टेल, या फिर टेल हेड हेड हेड, या फिर हेड टेल हेड हेड, और हेड हेड टेल हेड. एनी अदर केस? ये सारे हो गए ना? इसमें 4 हेड लग गया, सॉरी. ये सारे हो गए. अब 3 हेड का केस ले लिया, अब 2 हेड का केस लेते हैं. तो इट कैन बी हेड हेड टेल टेल, देन टेल टेल हेड हेड, देन हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल हेड. और कुछ हो सकता है? तो एक के तो हो सकता है टेल हेड, एंड वन मोर केस पॉसिबल, टेल हेड हेड टेल. और कुछ? यस, I think we are done with all the cases. Yes, all the cases are done. Then comes the case of one head only. So this is simple. Head, tail, tail, tail. Then tail, 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 head. Then tail, head, tail, tail. And then tail, tail, head, tail. Okay. So these would be the cases, total number of cases possible for 4 dice. Like since it is 4 dice and we are having 2 possibilities for each, so we will get 2 into 2 into 2 into 2, matlab 16 outcomes. And how many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, we have missed that tail. Okay, so one outcome will also be there, which would be T, 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 T. ठीक है. सो इस टाइप के अपने 16 आउटकम्स आएंगे. तो इन 16 आउटकम्स में से अपने को बोला है कि प्रोबेबिलिटी द पर्सन विन रुपीज 1 इज फॉर ईच हेड एंड लॉस रुपीज 1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप. और अपने सैंपल्स लिख के अपने को अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वो तो अपन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस केस में आएगा 1 + 1 + 1 + 1 4. इस केस में आएगा अमाउंट लूज करेगा कितना? 1.5 इंटू 4 कर दो. इस केस में 3 into 1 जीतेगा, -1.5. फिर इस केस में -1.5 + 3 into 1. फिर इस केस में वापस वही. तो इस टाइप के अपने को चलो मैं लिख देता हूँ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी. ये क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि 4 हेड है तो 4 रुपए जीते हो, तो +4. या फिर 4 और 13 है तो वो लूज करे हर बार, मतलब 1.5 into 4 मतलब 6 -6.
या फिर एक टेल तीन हेड हो, एक टेल तीन हेड होंगे तो तीन बार जीतेगा एक बार हारेगा, तो 3 - 1.5 मतलब +1.5 हो सकता है। या फिर दो हेड हो, दो टेल हो तो फिर दो बार जीतेगा दो बार हारेगा। 1 × 2 -1.5 × 2 मतलब 2 - 3 मतलब -1 हो सकता है। या फिर तीन टेल एक हेड हो मतलब -1.5 × 3 +1 मतलब -4.5 +1 -3.5। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है जो कि इस गेम से अपने को मिल सकता है। फिर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी भी अब एक एक करके लिख दो, जैसे कि +4 की लिखनी है तो +4 तो एक ही केस में हो सकता है जब चारों हेड है, वो तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये +4 की है, -6 की भी एक ही केस में होगी जब चारों टेल आए, उस केस में भी 1/16। देन +1.5 कब होगी? +1.5 तब होगी जब तीन हेड हो एक टेल हो, तो उस टाइप के कितने केस आएंगे? एक, दो, तीन, चार। चार केस ऐसे हैं जिसमें तीन हेड है एक टेल है, तो इट वुड बी 4/16 मतलब 1/4। ठीक है। और फिर लास्ट के -1। -1 कब आएगा? -1 तब आएगा जब दो टेल होंगे दो हेड होंगे। उसके कितने केस हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो वी हैव 6 such cases. So it would be 6/16 that is equal to 3/8. Okay. Then last one which is -3.5 when we will get three tails and one head. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक, दो, तीन, चार, अगेन 4/16 दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। तो देखो सैंपल स्पेस लिखने को कितना इजी हो गया। सो यू हैव टू जस्ट राइट द सैंपल स्पेस, देन आफ्टर देन द थिंग्स विल बिकम डैम इजी। So in this way, we have done the question number 7 also. So let's move ahead. Question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है अपने को बोला है three coins are tossed one. How many questions are there? I think it will take time. Okay. So three coins are tossed once. Find the probability of getting three heads. Three coins are tossed, no? So again, we have to write the sample space first. Sample space would be again three heads. Now for two heads, we will write head, head, tail, head, tail, head, tail, head, head, or only these many. Then one head, head, tail, 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 head, tail, 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 head. Then how many cases? One, two, three, four, five, six, seven, and the last case will be tail, tail, tail. Again, you can check since you have three coins and only two possibilities are there, head and tail. So 2 × 2 × 2, 8 possibilities, and we have written 8 cases. So our sample space is complete. Now, probability of getting three heads. There's only one case, so 1/8. Then probability of getting two heads. So one, two, three cases, 3/8. Then at least two heads. At least two heads मतलब 1, 2, 3 and 4 because तीन भी चलेंगे क्योंकि आपने को at least बोला है. So it would be 4/8 in this case. That is equal to 1/2. Okay. Then fourth part में क्या बोला है? At most two heads मतलब at most two heads दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चलेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, इट वुड बी 7/8। बस अपन वो अलग कैसे बता देंगे जिसमें तीनों हेड हो। फिर बाकी जिसमें हेड ना हो या एक हेड हो या दो हेड हो सारी केस चलेंगे क्योंकि अपने को एटमोस्ट दो हेड चाहिए। ठीक है। एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि उतने उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भले उतने भी ना हो। ठीक है। नो हेड, एक ही केसेस में तीनों टेल है।
सो 1/8. ठीक है. Then sixth part is three tails. Three tails also one case only. So 1/8. Seventh part, exactly two tails. Exactly two tails. One, two, three. Only three cases, so it would be 3/8. Then no tail, no tail, only one case when we have three heads, so 1/8. And last, at most two tails. Again, at most two tails, same as at most two heads. So it would be 7/8. ठीक है. बाकी अपन देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस इस केस को हटा देंगे. ठीक है. तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 8 is done. Again, you can do each and every question. You have to just write the sample space, then the question becomes damn easy. Okay. So let's move to question number 9. It is saying if 2/11 is the probability of an even, what is the probability of even not A? So not A is nothing but 1 minus A, 1 minus probability of A. Okay, so it would be 1 minus 2/11, that is equal to 9/11. ठीक है. तो ये अपना नॉट ए का आंसर होगा. फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. Let us choose a random from the word assassination. तो लिखो कि क्या कितने कितने हैं. ए कितने हैं. ए है IR2, then n is equal to n कितनी बार है. n है एक बार, दो बार. Then we have T for one time, then we have O for one time. ठीक है. तो ये तो लेटर्स हो गए. अब इससे बोला क्या है, अ वॉवल. तो वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो वॉवल क्या है, ए वॉवल है और ओ वॉवल है. कितने वॉवल्स है, 3 + 1 4 वॉवल्स है. डिवाइड बाय टोटल कितने लेटर्स हैं, 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11 12 13. So 4/13 is the probability. मतलब नंबर ऑफ वॉवल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो अपने को चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, अपने को टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने पड़ेंगे. वो तो अपने टोटल सैंपल स्पेस, और जो अपने को चाहिए वो न्यूमरेटर में आएगा. देन सेकंड पार्ट, अ कॉन्सोनेंट. अ कॉन्सोनेंट, ऑब्वियस सी बात है, जो लेटर नहीं होगा वो कॉन्सोनेंट होगा. तो अरे सॉरी सॉरी, आई तो वॉवल होता है. सो इट विल बी 6/13. ठीक है. देन कॉन्सोनेंट कितना होगा, 7. 7/30. तो ये अपने 10th पार्ट का आंसर है. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है. In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. Okay. And if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. बहुत ही खतरनाक लॉटरी है. What is the probability of winning the prize in the game? Order of numbers is not important. अच्छा. तो इसमें इन्होंने बोला है कि लॉटरी कमेटी ने क्या किया है, 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं और फिर अपने को 1 to 20 की में से 6 नंबर चूज करना है. अगर वो 6 नंबर वही आते हैं जो फिक्स कर रखे हैं, then we will win the prize, otherwise we will not. And we are given that order of numbers is not important. ठीक है. तो कैसे कर सकते हैं इसको. अपने को 20 में से 6 नंबर चुनने हैं. तो अपन 20 में से 6 नंबर किस तरीके से चुन सकते हैं. अपन 20 में से 6 नंबर चुन सकते हैं. देखो, पहला नंबर अपन चूज कर सकते हैं 20 तरीके से, क्योंकि अपने पास 20 नंबर है. दूसरा नंबर अपन चूज कर सकते हैं 19 तरीके से, क्योंकि अपन ने एक हटा दिया. तीसरा चूज कर सकते हैं 18 तरीके से, फिर 17 तरीके से, फिर 16 और फिर 15. ऐसे करके अपन लोग 6 नंबर चूज कर सकते हैं. टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 6 numbers out of 20 numbers this much. एंड अपने को चाहिए कि सिर्फ वही वाला केस है जो उन्होंने फिक्स कर रखा है.
इट वुड बी वन ओनली, मतलब अपने को सिर्फ वही केस चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वो एक केस होगा जो उन्होंने चूज कर रखा होगा. सो प्रोबेबिलिटी वुड बी वन डिवाइड बाय दिस थिंग. सो probability would be one second, let me calculate. So it is coming out to be 38760. Alright, 38760. 2019 multiplied by 18, then 17, then 16, and then 15. Hmm, am I doing something wrong? Okay, we are considering the order also. It is given an order of numbers is not important. And then there's only one way to do this question is taking that thing 2035. If you have read the chapter permutations and combinations, then you must be knowing that the number of ways of choosing 6 different numbers from 20 different numbers is nothing but 20C5. This thing we used to read in permutation and combinations chapter. So 20C5 is nothing but number of ways of choosing 5 numbers out of 20 numbers without considering the order. And the one which I did earlier, there I was considering the order also, because it is given that order of numbers is not important. So our answer 20C5. 20C5 is nothing but 20 factorial divided by 5 factorial divided by 20 minus 15 factorial. So on solving this, we will get 38760, and our answer would be 1 divided by 38760. 1 क्यों? क्योंकि ऐसा एक केस होगा जिसमें वो 6 नंबर आ जाए जिसमें दोनों ने डिसाइड करके रखे हो. क्योंकि वैसा एक ही होगा ना, मतलब 20 में से आपने 6 चुन रखे हैं, वैसा एक केस अपने को चाहिए और अपने को चुनना है 8,760 केसेस में से. सो इट इज 1/3760. और अपन 6 नंबर्स कैसे चुनेंगे 20 नंबर्स में से? 20C6 तरीके से, 20C5 तरीके से 6 चुनने हैं ना, सॉरी 26. Okay, so in this way we will be doing this question. Let's move to the next question, number 12. What is given? Okay, question number 12. We इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो मैं आपको बताता हूँ. It is PA this one B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. मतलब intersection कैसे बनाएंगे? Intersection will do something like this. Okay, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए. ये बहुत काम भी आता है, आगे भी काम आएगा. So learn it. Now it is seeing what it is. इसमें अपने को इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली. अपने को बोला है पी ए दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी. Okay, so let's continue. So there is identity that PA intersection B is always greater than. Well, it is not an identity. I am writing what is given in the question. PA. ठीक है, ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अपना पी ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरा पी ए से बड़ा है. अब मुझे एक चीज बताओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए से बड़ा कैसे हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है वो वाली प्रोबेबिलिटी जिसमें ए भी हो और बी भी हो, मतलब जिसमें वो दोनों आ रहे हो. लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास 2 1 है और तुम्हारी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही हो. कैसे आती है? मतलब ऐसे सोचो इसको कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी समथिंग लाइक जिसमें ए भी है और बी भी है. जब वो दोनों होंगे तभी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा. तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमेशा पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी से कम ही हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट ऐसा हो जो ए में हो लेकिन बी में ना हो. तो अपनी पी ए इंटरसेक्शन बी में अपने को वो लेना पड़ेगा जो दोनों में है, लेकिन पी ए में सारे आ जाते हैं. तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी बी. सो ये चीज जो अपने को यहाँ पे दी हुई है कि
पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी से छोटा है, यहाँ पर तो करेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये पी ए से बड़ा है सो इट इज नॉट पॉसिबल. इन सेकंड केस इट इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ग्रेटर इन बोथ पी एंड पी बी. What is it? It is union. In case of union, it is possible. Yeah, it is possible. Zero point 0.5 plus zero point 0.4 is zero point 0.9. So it is possible it is zero point 0.8 because PA union B can be at max the sum of both. If both A and B are mutually exclusive, then PA union B is at max zero point 0.5 plus zero point 0.4, zero point 0.9. But it can be zero point 0.8 in case some of the elements are overlapping. So second case is consistent, but the first is not. ठीक है. तो यहाँ मैं लिखता हूँ hence if it's so it is not consistent. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में it is consistent because the union can be at max 0.9 and since it is less than that so it is consistent. So consistent. ठीक है. तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे. फिर आगे चलते हैं. क्या बोल रखा है अपने को पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, और अपने को पी इंटरसेक्शन भी निकालना है. तो ये इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको पिछले साइड पे लिख के दिया था. कौन सा? वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या फिर लिख देता हूँ. चलो पी ए बीच में साइन बनाऊंगा मैं अभी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी सॉरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो अभी यहाँ पे बना देते हैं ए यूनियन बी इज माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. तो ये मेरा फॉर्मूला होता है. अभी बस तो दिया वो डाल दो. जैसे कि पहले वाले पार्ट में मुझे यूनियन निकालना है तो इसको मैं बोलता हूँ एक्स या फिर एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इक्वल टू पी ए 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15. So this thing is equal to 15 LCM, then 5 plus 3, 8. 8/15 minus 1/15, that would be 7/15. Okay. So this is the first part. Then in second, it's saying P भी अपने को बताना है तो 0.6 दिया हुआ अपने को. 0.6 is equal to 0.35 plus let's say x minus 0.5 minus हम इसको स्मॉल कर सकते हैं माइनस पी इंटरसेक्शन इज 0.25. तो ये कितना आ जाएगा? 0.35 minus 0.25 is nothing but 0.10 and it will go that side so it would subtract from 0.6 so x would be 0.5. ठीक है. तो इस तरीके से अपना सेकंड पार्ट भी हो जाएगा. वैसे ही थर्ड पार्ट भी हो जाएगा. इसमें अपने को पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है. ठीक है. तो इस तरीके से कर लेंगे. बेसिकली अपने को तीन चीज हमेशा दी रहेगी और अपने को चौथी चीज पूछी होगी. ठीक है. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14.
पी ए दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है मेरे को, पी ए और बी मतलब वही पी ए यूनियन बी पूछा है, एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इंटरसेक्शन विल बी जीरो। सो अपने को इसमें बोला गया है क्या, सबने को बस पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला टर्म जीरो दिया हुआ है, अपने को ये पूछा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लो, तो इसका सम तो सीधे सीधे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, क्योंकि पी इंटरसेक्शन बी जीरो दिया हुआ है तो वो अपने को कंसिडर नहीं करना, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को बोला है ई एन एफ आर इवन ई पी एफ दिया हुआ है, पी ई एंड एफ दिया हुआ है, ई एंड एफ इज अगेन इंटरसेक्शन, फाइंड पी ई यूनियन एफ मतलब और कोई यूनियन बोलते हैं, एंड पी ई एन नॉट एफ, तो निकालते हैं पी ई और एफ इज इक्वल टू पी ई मतलब 1/4 प्लस पी एफ 1/2 माइनस पी ई एंड एफ मतलब 1/8। ये कितना हो जाएगा, LCM would be 8, then we will be having 2 plus 4, 6, minus 1, 5, 5/8. Okay, then P not E and not F. P not E and not F. This thing is P E bar intersection F bar. So how can this be told? Um, में E भी नहीं हो और F भी नहीं हो. We can do it this way. लेकिन इसमें अपने को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और else what we can do is इसमें क्या कर सकते, अरे यार सिंपल तो है, इसको सीधे सीधे 1 से माइनस कर दो ना। देखो इसको कैसे कर सकते हैं ना अपन, इसमें अपने को क्या लिखा हुआ है, अपने को लिखा हुआ है पी ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, इंटरसेक्शन एफ बार ये लिखा हुआ है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग डी मॉर्गन लगा के लिख सकते हैं। डी मॉर्गन में क्या होता है, डी मॉर्गन में ऐसा होगा कि एंड विल रिप्लेस बाय और, मतलब ये ऐसे होगा कि 1 माइनस पी ई और एफ। ठीक है, सो इस तरीके से अपन लोग करेंगे इसको चाहे तो अपन याद रख सकते हैं, वरना फिर इसको डी मॉर्गन साइन से करा जा सकता है। अपन लोग क्या करेंगे, ई बार एन एफ बार को बदल सकते हैं, पी ई और एफ का इसके ऊपर अगर अपन लोग बार लगाएंगे तो वी विल गेट ई एन एफ मतलब ई बार एन एफ बार। सो यू कैन टेक इट टू बी फॉर्मूला, यू कैन यूज इट यूजिंग, you can derive it using the De Morgan theorem. So this is easy actually. So what we will get 1 minus 5/8, that is 3/8। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 15 का। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। 16 में मुझसे बोला है इवन ई एंड एफ सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ, अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है पी नॉट ई और नॉट एफ। ओके, देन वी आर आस्क्ड अबाउट स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ है पी नॉट ई मतलब ई बार और एफ बार। ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ई, आपस में डी मॉडल लगा रहा हूँ, एंड एफ
का बार, मतलब क्या कि मैं पूरे पे बार ले लिया, पूरे पे बार लेने से क्या होगा, अब मैं पूरे पे बार डालूंगा तो ई का हो जाएगा ई बार, एफ का हो जाएगा एफ बार, एंड का हो जाएगा और। वही चीजें मैंने यहाँ पर करी थी। पूरे पे बार लिया तो हो जाएगा ई का बार, मतलब ये हो जाएगा ई और एफ का बार, वन माइनस पी ई और एफ, so it would be p e and f का बार, that is nothing but वन माइनस p e and f। ठीक है, सो इस तरीके से अपन इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को दिया हुआ है कितना, ये अपने को दिया हुआ है 0.25, तो यहाँ से अपन को निकाल लेंगे p e एंड f, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 0.25 मतलब 0.75। ठीक है, तो ये अपने निकाल लिया p e एंड f। अपने को देखो क्या दिया, अपने को दिया हुआ है स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ऑब्वियस सी बात है, पी ई एंड एफ जीरो नहीं आ रहा, अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर ये जीरो होता तब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। मैंने आपको पहले बताया ई एंड एफ मतलब होता है जो दोनों में है, जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है देन दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। मैं क्या लिखूंगा, सिंस पी ई एंड एफ आर इस, या फिर इसको लिखो इस नॉट जीरो, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, इसमें बोला मुझे पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए एंड बी दिया हुआ है। पी नॉट है तो आराम से निकल जाएगा, पी नॉट है तो आराम से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, सिंपल, वन माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, इट वुड बी वन माइनस 0.42, दैट इज 0.58। ठीक है, फिर मुझसे क्या बोला, फिर मुझसे बोला पी नॉट बी, पी नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस पी बी, दैट इज वन माइनस 0.48, दैट इज इक्वल टू 0.52। ठीक है, फिर क्या बोला मुझसे, पी ए और बी, अगेन सिंपल, पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ठीक है, तो अपने को सब कुछ दिया हुआ है, अपने को बस वैल्यू डालनी है, 0.42 प्लस 0.48 minus 0.16. So this thing will come out to be 0.50, 0.90 minus 0.16. It would be 0.74. So this is our answer for P, A or B. Using PA plus PB minus PA and B. You can easily calculate this thing. ठीक है, सो इस तरीके से अपन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ आगे के क्वेश्चंस में, नेक्स्ट सेशन में करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली चीज वही है, इसमें थोड़ा अपन लोग आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखनी आनी चाहिए चीजों की। सैंपल स्पेस अगर अपन लोगों को लिख ली तो अपन लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फिर ये कुछ जनरल फॉर्मूला है एंड और वगैरह के, तो एक तो ये जनरल फॉर्मूला जो पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी वाला पता होना चाहिए। बाकी जो मैंने डी मॉर्गन चीज बताई थी वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली में। बाकी प्रोबेबिलिटीज एंड इजी चैप्टर, मतलब मैथ्स में अगर हम बोलेंगे तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, तो वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बाकी के फिर विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू।